الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی، آج ہمارے درس کی یہ دوسری قسط ہے۔ کل سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کے بارے میں ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی کچھ بحثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، جن میں سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ فاتحہ کے جو مختلف نام ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج کی آیت پڑھنے سے پہلے کل جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کو بطور خلاصہ کے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے دوسرے نمبر والی سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورہ فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، اور ایک اس کا نام ام القرآن ہے۔ ام القرآن کا معنی قرآن کی اساس اور بنیاد۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے مضامین اور قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بطور دیباچے کے، بطور مقدمے کے اور بطور پریفیس کے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سورہ فاتحہ کے بارے میں مروی ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال نزلت فاتحة الكتاب بمکہ من کنز تحت العرش، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مکہ کے اندر نازل کی گئی اور یہ عرش کے خزانوں کے نیچے سے لائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے ان خزانوں میں سے ایک خزانہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علیہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ام القرآن فقال والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها انہا لہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے
इस सूरत की मिसल न तौरात के अंदर नाजिल फरमाई और न इंजील के अंदर नाजिल फरमाई और न ज़बूर के अंदर नाजिल फरमाई, हत्ता कि कुरान करीम के अंदर भी इस जैसी कोई सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाई। और ये 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयत हैं और वो कुरान अजीम है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। तो इन अहादीस से सूरह फातिहा की फजीलत और अजमत का इजहार होता है। तो इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इब्तिदाई पैगाम से वाकिफ हो जो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हम तक पहुंचाया है अपने हबीब के जरिए। तो पहली 3 आयत का तर्जमा आप हजरात के सामने आ चुका है। अब चौथी आयत का तर्जमा आप हजरात के सामने इस वक्त पेश करता हूं। फरमाया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। कल जैसा कि मैंने अर्ज किया था पिछली वीडियो के अंदर कि हम सूरह फातिहा को तर्जुमा और तफसीर के एतबार से 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बारे में है और दूसरा हिस्सा अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान आपस में जो ताल्लुक है उस ताल्लुक को बयान कर रहा है। और वो ताल्लुक इस आयत करीमा से जाहिर हो रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा को एक निराले उसलूब के अंदर बयान फरमाया है कि शुरू में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर दी गई और हम्दो सना के अंदर गैब का सीगा इस्तेमाल हो रहा था, गायब का सीगा, कि इस बारे में किसी की तरफ से इजहार नहीं था कि अल्लाह ताला की हम्दो सना करने वाला कौन है, बल्कि मुतलक अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान हो रही थी। लेकिन जब अल्लाह ताला की हम्दो सना मुकम्मल हुई तो जब बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने इसको गायब से मुतकल्लिम के सीगे के अंदर तब्दील कर दिया, मुतकल्लिम के सीगे में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि हम पूरे सिद्क़ नीयत से, पूरे इरादे के साथ और पूरी तवज्जो के साथ इस बात की तरफ मुतवज्जह हो जाएं कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। और इस बारे में किसी किस्म का कोई शक और शुबा न रहे कि जो शख्स अल्लाह की हम्दो सना कर रहा है वो अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला से मदद मांगने में किसी को मुस्तस्ना कर रहा है, बल्कि मुतकल्लिम का सीगा, मुतकल्लिम का माना होता है हम, जिसके अंदर सब शामिल हैं, यानी जिसके अंदर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अपना बेगाना, हर किस्म के लोग इसके अंदर शामिल हो गए। तो इससे ये बात जाहिर हुई कि अल्लाह ताला की इबादत से कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। कोई इंसान चाहे वो किसी बरादरी से, किसी खानदान से और किसी कबीले से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो नेक आदमी हो या वो गुनाहगार बंदा हो, वो वली हो, बुजुर्ग हो, सहाबी हो, हत्ता कि अल्लाह का नबी भी हो, अल्लाह की इबादत से कोई मुस्तस्ना नहीं। और इसको अल्लाह ताला ने एक निराले उसलूब के अंदर बयान फरमाया। वह निराला उसलूब यह है कि अरबी जबान के कायदे के एतबार से अगर इसको सादा अंदाज में बयान किया जाता तो इसको इतना कहना काफी था, नअबुदु का व नस्तईनु का, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले एक लफ्ज का इजाफा किया, इय्याका नअबुदु, और नस्तईन से पहले भी लफ्ज का इजाफा किया, इय्याका नस्तईन। तो इससे अरबी कवायद और अरबी ज़वाबित के एतबार से ये मफहूम निकला कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि नअबुदु का व नस्तईनु का, तो इसका मतलब ये होता कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, लेकिन इसके अंदर ये इम्कान और
एहतिमाल बाकी था कि हम अल्लाह के सिवा किसी और से भी मदद मांग सकते हैं, लेकिन इय्याका नअबुदु के लफ्ज ने आकर बता दिया कि इबादत हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। और इसमें तमाम के तमाम मखलूकात इससे खारिज हो गए कि हम अल्लाह की मखलूकात में किसी की इबादत नहीं करते, ना हम चांद और सितारों की इबादत करते हैं, ना हम बुतों की इबादत करते हैं, ना हम सूरज की इबादत करते हैं, ना हम किसी वली की इबादत करते हैं, ना हम किसी पैगंबर की इबादत करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और इय्याका नस्तईन में आकर इस मफहूम को वाज़े कर दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही से मदद मांगते हैं, यानी हम अपने तमाम मामलात में, चाहे ज़ाहिरी मामलात हों, चाहे हमारे पोशीदा मामलात हों, चाहे मादी ज़रूरियात हों, चाहे हमारी रूहानी ज़रूरियात हों, किसी भी किस्म की हमारी ज़रूरियात हों, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद नहीं मांगते। तो मुसलमान का अकीदा इस आयत करीमा से जाहिर हो रहा है, और ये आयत करीमा अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक ताल्लुक को वाज़े कर रही है। गोया कि यहाँ पर अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक मुआहदा तय पा रहा है, एक दस्तावेज तय पा रही है कि ए अल्लाह, हम तुझसे ये वादा करते हैं कि तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगेंगे, ये हमारा तुझसे वादा है। तो ये गोया कि अल्लाह ताला के साथ एक मिसाक तय हो रहा है, अल्लाह के साथ एक मुआहदा हो रहा है, और इस मुआहदे के अंदर हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जब भी दुनिया के अंदर हमें कोई जरूरत पेश आएगी, कोई मुश्किल पेश आएगी, कोई परेशानी होगी, तो हम तेरे ही सामने अपना माथा टेकेंगे, तेरे ही सामने अपने हाथ फैलाएंगे, तेरे सिवा किसी और से मदद नहीं मांगेंगे। यहाँ पर एक इल्मी सवाल यह पैदा होता है कि अगर किसी से मदद मांगी जाए, किसी को कहा जाए कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो क्या उससे मदद मांगना शिर्क है? क्या उससे मदद मांगना कुफर है? तो इस बात को समझना जरूरी है कि मदद की दो किस्में हैं। एक किस्म यह है कि हम किसी से मदद किसी सबब और वास्ते के जरिए से मांगें, जैसे हम किसी को यह कहें कि हमें आपसे कुछ रकम उधार चाहिए, या आप बतौर सदका और खैरात के कुछ रकम हमें इनायत कर दें, या हम किसी से यह मदद मांगें कि हम फलां जगह पर जाना चाहते हैं, आप हमें अपनी गाड़ी पर बिठा लें और वहां तक हमें पहुंचा दें, या हम किसी से यह मदद मांगें कि हमारी फलां चीज फलां जगह पर मौजूद है, आप वो चीज उठाकर हमें लाकर दे दें, या फलां चीज हमें पहुंचा दें। तो ये मदद हम एक वास्ते के जरिए, एक सबब के जरिए मांग रहे हैं, तो ऐसी मदद मांगने में कोई हरज नहीं है। जैसा कि खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। तो दुनिया के जो असबाब वाले काम हैं उनमें मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इंसान अकेला दुनिया के अंदर कोई काम कर ही नहीं सकता। हर इंसान अपने कामों में दूसरे लोगों की मदद का मोहताज होता है, तो उनसे मदद मांगने में कोई बुराई नहीं। लेकिन यहां पर जिस मदद की नफी की जा रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, उस मदद से मुराद वो मदद है कि जिसके अंदर कोई वास्ता ना हो, कोई सबब ना हो, यानी बगैर किसी सबब के हम किसी से मदद मांगे। जैसे हम किसी आदमी को कहें कि हमें एक लम्हे में कराची पहुंचा दे, तो ये मदद जो हम उससे मांग रहे हैं, ये बगैर किसी वसीले और बगैर किसी वास्ते के है कि उसके पास कोई ऐसी कुव्वत हो कि वो हमें उठाए और कराची पहुंचा दे, हमें उठाए और लंदन पहुंचा दे। या हम किसी को कहें कि लंदन से हमारे लिए ये चीज एक लम्हे के अंदर मंगवा दो, तो बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी वसीले के मदद मांगना ये कुफर और शिरक के अंदर दाखिल होगा। ऐसी मदद से हम बरात का इजहार करते हैं, और ये मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जा सकती है कि अल्लाह ताला बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी सबब के हमें अता फरमाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी परवरिश करके हमें बड़ा किया है, इसी तरह अल्लाह ताला दीगर जरूरियात
ज़रूरियात बगैर वास्ते के, बगैर वसीले के हमें हमारी ज़रूरियात में हमारी मदद फरमा सकते हैं। लेकिन अल्लाह के सिवा ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता, ना कोई सहाबी, ना कोई वली और ना कोई आम इंसान बगैर किसी वास्ते के मदद नहीं कर सकता। और इसी तरह कब्रों के सामने जाकर सर झुकाना या कब्र वालों से मांगना, ये भी इय्याका नस्तईन के खिलाफ होगा, क्योंकि हम अल्लाह ताला से वादा कर चुके हैं कि हम मदद सिर्फ आपसे मांगेंगे। तो अगर हम किसी कब्र वाले से जाकर मदद मांगें, किसी कब्र वाले को कहें कि हमें औलाद अता कर दे, तो जो अल्लाह से हमने मिसाक और वादा किया था उस वादे को हम फरामोश कर रहे हैं, और इस तरह की मदद मांगना शिरक के अंदर शामिल होगा। तो ये सूरह फातिहा की चौथी आयत की मुख्तसर सी तशरीह हमने आप हजरात के सामने पेश की है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि हमारी इन गुजारिशात को पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ खुद भी सुने और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और काबिल इस्लाह बातों की तरफ हमारी तवज्जो भी मबजूल फरमाएं। और अगर कोई राय आपके जहन के अंदर हो तो आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से मुत्तले कर सकते हैं। हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे और आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और हम उसका खैर मकदम करेंगे। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।